नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी रिपोर्टर रिया फुक्सा और आप देख रहे हैं नेपाल लाइव न्यूज़ चैनल। तो यहाँ आज हम हमारे अरुणाचल प्रदेश तिरप डिस्ट्रिक्ट के पोकोम चर्च में मौजूद है और यहाँ पर आज नुक्ते बैप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन की ओर से स्पोर्ट वीक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ चीफ गेस्ट के तौर पे मौजूद रहेंगे श्री तोको तेकी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ACF। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हमारे साथ मौजूद रहेंगे श्री एन मोंकू, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर खोंसा, और भी कई सारे एथलीट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। तो फिर चलिए आज के इस प्रोग्राम की ओर थोड़ी सी नज़र डालें। Hello. Yes, all the students and other delegates are. Good morning, sir. Morning. Council President. Sir, this is a question. Good morning. Good morning. Hello. Giving thanks to the God, the Father through Him. So today let's do sports in the name of the Lord. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. But only one receives the prize, so run that you may obtain it. And as we are here today to celebrate and to observe this sports week, and today is the day where we will be starting, where we will be opening the door of sports. Thank you, sir. Thank you, sir. 2 Timothy chapter 2 verse 5 यहाँ में ऐसा लिखा है कि if anyone competes in athletics, If you want to be the good sport person, you have to discipline. डिसिप्लिन में जीतना पड़ेगा। हम लोग थेरापी अभी तक भी ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, मतलब फर्स्ट एवर स्टेट लेवल खेलो इंडिया में सिर्फ ऑन ओवर चैंपियनशिप। Thank you, Nokte Baptist Association, for inviting me as a chief guest for the sports meet of Nokte community. अरुणाचल का हिस्ट्री में, स्पोर्ट्स हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम वुशु मार्शल आर्ट्स एशियन गेम क्वालिफाई किया है। 3 लड़के, एक तो है लोंगडी का नेमा मोंगसो, सेकेंड लड़की आंजो डिस्ट्रिक्ट का ओनिलू टेगा का, ये एक तो सपा का है। अब यूनिफॉर्म में गोलकीपर जैसा रैंकिंग ऑफिसर कौन है? Yes, continue. First set won by Chicoy Baptist Church.
Okay, so sir, in the first place, how do you feel to be here as a chief guest? I feel very, very happy to back in Tirap district. I came here 2 times before, and after decades, I am coming again, and to be the part of the Nokte Baptist Christian Association Youth Sports Meet. Today it has started in a grand way. I'm very happy. Okay. And sir, according to you, what are the qualities that a person must have to be successful in sport or games? A person must be very disciplined. He must be practicing in a scientific way. Whatever games, volleyball or football, boxing, any sports, a person should ready to follow what his coaches and the masters tell them to do. Okay. And sir, according to you, what are the importance of sport and games in our society, and how does it help to eradicate the drugs or alcohols? Games and sports is one of the greatest the discovery by mankind. It has started in the ancient Greek society civilization, and in thousands years it has kept our youth in discipline, physically fit, and their mind is always positive. Those who train regularly, daily in sports, their mind is very positive. And by that way, some of if our youth have gone addiction of drugs, they can try the games and sports, and gradually they can give up the drugs addiction also. Okay, sir, and how the students can manage their academics and sports hand in hand? The sports is for your fitness, and for when your body is fit, your mind is fit, healthy. So when your mind and body is healthy, you will do far better in academics also. Okay, sir, and lastly, what would be your message to all the athletes here? My message to the athletes of this Tirap district, not only Tirap, Longding and Changlang, these 3 brotherly districts, they have the huge potential. Already your out of these 3 brotherly districts, one from Longding district, one girl has Neman Wangsu in Wushu martial arts qualified for the Asian Games. Now she is the 3rd or 4th consecutive national gold medalist, national games. This is conducted by the Government of India under this Ministry of Sports. So there is a lot of good boxer, lot of good judo players. Judo is very good for the paramilitary and military and police force. Judo players, wushu players, taekwondo players, wrestlers, boxing, badminton, volleyball, football, every field. These 3 districts has the great potential for Arunachal Pradesh and for India. तो सर, तिरप डिस्ट्रिक्ट में आप स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट है फॉर ऑल द गेम्स एंड स्पोर्ट टाइप्स हियर? See, in our Tirap district, we have now only 2 indoor stadium. There is one is at काइमे में एक तो है, इंडोर हॉल है. इसमें 4-5 डिसिप्लिन खेला सकता है. एंड और भी एक तो हम लोग केलो इंडिया सेंटर बोल के कौन सा टाउन में है, और एक तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गोइंग ऑन, बैडमिंटन हॉल बोल के जस्ट नियर बाय द सर्किट हाउस में है. हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखा जाएगा तो बहुत कम है. एरिया को देखा जाने से प्लेयर्स जो काफ़ी हम लोग का प्रोड्यूस भी हुआ है, एंड खेलने की जगह भी आउटडोर भी नहीं है. आउटडोर ओनली वन स्टेडियम इज द नेहरू स्टेडियम, वो भी कंस्ट्रक्शन गोइंग अभी चल रहा है. वो भी अल्ली कंप्लीट हो जाने से हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी हम लोग का भी अवेलेबल तो हो जाएगा. ओके सर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट से कोई अपील है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे इक्विपमेंट्स को लेके हो, चाहे टूल्स को लेके हो? सी, हम लोग का पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाने के लिए जगह होना पड़ता है. तो हम लोग का जगह भी 1 पॉइंट जगह भी नहीं हो रहा है. अभी लकीली अभी तो हम लोग पुच्छल का एक भी कोर्ट बना रहा है, जहाँ हम लोग टाउन का जो पार्किंग के ऊपर में एक तो पुच्छल बना रहा है. अभी 1-2 महीना में वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ इक्विपमेंट्स में तो हम लोग का काफ़ी कम है.
अभी हम लोग खेलो इंडिया सेंटर में हम लोग का बॉक्सिंग एंड जूडो का है, तो इसमें भी हम लोग का बॉक्सिंग रिंग अभी तो भी हम लोग मैनेज करके दे रहे हैं, लेकिन कोई अभी तो भी हम लोग का कुछ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। बाकी जो इंडिविजुअल्स गेम्स में लाइक जूडो का तो है, ताइक्वांडो का है, एंड जो उशू लोग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का भी इक्विपमेंट्स नहीं अवेलेबल नहीं है, वही हम लोग का। लेकिन अपना के लिए तो है, लेकिन जितना चाहिए था हम लोग का बायोमैकेनिकल के लिए जो ट्रेनिंग जितना इक्विपमेंट्स देना चाहिए था वो हम लोग का वो सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ओके सर, तो जो एथलीट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल में या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो गोल्ड मेडल हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो, जो भी इस तरह का जो मेडल्स हम लोग का स्टेट के लिए या हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए लेके आता है, उन लोगों को हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से या तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई ऐसा सुविधा दिया जाता है उन बच्चों को उनके ग्रोथ के लिए? देखिए, हम लोग का जितना भी संगलन स्पोर्ट एकेडमी में हम लोग जिस बच्चा को सिलेक्शन करके हम लोग इतना भेजता है, वो लड़का लोग बच्चा लोग अच्छा रिजल्ट लेके वो लोग नेशनल में भी मेडल लेके आता है एंड स्टेट को भी नाम मतलब रोशन कर लेता है। तो रिसेंटली हम लोग का इसमें उशू में भी एग्जांपल हम लोग का एक लड़का जो रशिया में भी गोल्ड मेडल आया है, ऐसे गवर्नमेंट आई थिंक 3 लाख ऐसा दिया है कैश इंटेंसिव में स्पोर्ट अचीवमेंट में। एंड जो नेशनल में मेडल लेके आता है कि गवर्नमेंट लोग इसको अपना से ही 1 लाख 2 लाख 3 लाख कैश इंसेंटिव में वो लोग प्रोवाइड कर लेता है, वही हम लोग को इसमें कैश इंसेंटिव के बारे में। एंड सेकंड पॉइंट हम लोग आप जो बोला है, हम लोग अपना डिपार्टमेंट का तो जितना भी इसमें तिरप डिस्ट्रिक्ट में तो अंडर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग भी टू एंड फ्रो एंड थोड़ा मतलब मैनेजमेंट तो कर लेता है और हम लोग इसको हेल्प कर लेता है। जो नेशनल लेवल में जो पार्टिसिपेट करने जाता है वही हम लोग का है। एंड सर, हम आपसे स्पोर्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहेंगे ताकि जो भी बच्चे आपको सुन रहे हैं उन्हें स्पोर्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले, और इसी स्पोर्ट के द्वारा जो है जो अल्कोहल में जाता है, जो ड्रग्स एडिक्शन में जाता है, उसको भी हम लोग टैकल कर सकता है, उसको भी हम लोग एराडिकेट कर सकता है। तो उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग का गेम एंड स्पोर्ट इन द फील्ड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट में तो स्पोर्टमैन बनना चाहता है तो मतलब वो हैव टू बी मतलब जो जितना भी एबल जो चीज़ है इसको छोड़ना ही पड़ेगा। आपने पूछा मतलब लाइक ड्रिंक जो मतलब ये ड्रग्स उनको टच नहीं करना पड़ेगा इसको। तो अगर ये लोग को इन्वॉल्वमेंट हो गए तो यू कैन नॉट फिट, अब फिटनेस हम लोग नहीं रख पाएगा अपने फिजिकल को। से इस गेम स्पोर्ट में हम लोग का फिजिकल एंड मेंटल प्रिपेयर मतलब इसका फिटनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी ड्रग्स में हो या अल्कोहल में जो भी नहीं खाने पीने में जो अनवांटेड थिंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो ही और सी कैन नॉट बी द गुड स्पोर्ट पर्सन्स। एंड बिकॉज इसको तो डिसिप्लिन भी चाहिए, पंक्चुअल होना पड़ेगा एंड फिजिकल में आपको स्पीड जितना भी मोटर एबिलिटी है इसको पास फिटनेस को रखना पड़ेगा, तभी वो आदमी जो स्पोर्टमैन बन सकता है। अगर आप ड्रंकर बन जाएगा तो वो तो कभी स्पोर्टमैन नहीं बन पाएगा। अगर ड्रग्स में जाएगा तो वो कभी भी एक स्पोर्ट एंड ड्रग्स में जाएगा तो कभी एक्शन में हो ही नहीं पाएगा। इसमें आपको चॉइस करना पड़ेगा। अगर स्पोर्ट में जाना है तो चल रही है जितना भी वो अनसिंस एंड अनसिंस जो दिखाए नहीं उस चीज़ को बिल्कुल सबको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो स्पोर्टमैन बन सकेगा। एंड सर, लास्टली आप अपने यूथ को, आज के जो एथलीट्स हैं, आज के जो प्लेयर्स हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये दिस एंड नॉक्टे बाप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन जो अच्छा ये इंट्रामोरल भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रामोरल भी बोल सकते हैं। अच्छा ये उन लोग गेम स्पोर्ट टैलेंट हंट जैसे किया है, यहाँ से टैलेंट हंट करके अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर्स भी निकल भी सकता है एंड अच्छा एथलेटिक में भी अच्छा लड़का मिल जाने से उन लोग कभी स्टेट लेवल में रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिल सकता है। ये NBCA यूथ डिपार्टमेंट ने अच्छा जो बस्ती जो रूरल एरिया लोग का बच्चा लोग को मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, वही हम कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है तिरप ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ एडवाइज़र यूम सर। तो हम इनसे स्पोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। थैंक यू नेफा लाइफ। आज बहुत थैंक यू नॉक्टे बाप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन स्पोर्ट्स वीक में हमको भी इनवाइट किया है। तो सर, स्पोर्ट के फील्ड में बच्चों को कौन कौन सी बेनिफिट्स होती है? अच्छा सवाल पूछा आपने। स्पोर्ट्स खेल के अभी इंडिया गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट लोग ने भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। स्पोर्ट्स अगर आप मेडल लेगा और अचीवमेंट लेगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आप तगड़ा रहेगा तो क्या होगा कि स्पोर्ट्स कोटा आजकल पुलिस में हो, आर्मी में हो
ये कहीं कोई भी डिपार्टमेंट में हो, अब 10% आर्मी में है और सिविल में 5% ये स्पोर्ट्स कोटा अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से है। आप इंटरव्यू देने के लिए ज़रूरत नहीं है और ये करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप सर्टिफिकेट अगर इंटरनेशनल या नेशनल अगर मेडल मिलेगा आपको, तो आपका सर्टिफिकेट और आपका अचीवमेंट देख के वो डायरेक्ट आपको ऑफिशियल लेवल से या और कोई कैटेगरी होता है उसका भी, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगा। तो सर जो स्पोर्ट्स में होते हैं नॉर्मली वो लोग स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एकेडमिक को और साथ ही साथ स्पोर्ट्स को किस तरह से साथ में लेके चल सकते हैं? मैं तो सभी स्टूडेंट्स लोग को यही कहना चाहता है, आप स्पोर्ट्स में जुड़े रहिए और साथ साथ में पढ़ाई करने का साथ साथ में आप स्पोर्ट्स को भी साथ में लेकर चलिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर आप साथ में रहेगा तो आपका फिटनेस भी अच्छा होगा और आप नशा, ड्रग्स हो या बीड़ी गुटखा खैनी उसको सेवन मत कीजिए, आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हम लोग को स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका नशा वाला है। जो बीड़ी होगा, खैनी हो गया, गुटखा हो गया, वो हम लोग का दुश्मन है। जैसे कि क्रिश्चियन में हम लोग शैतान बोलता है, लूसीफर बोलता है, उसी का जैसा हम लोग का एक लूसीफर जो हम लोग का स्पोर्ट्स लोग का जो दुश्मन जो है एक नशा वाला लोग होता है। क्योंकि हम लोग का एनर्जी लाने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए और स्टेमिना लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10-10 किलोमीटर और 15-15 किलोमीटर और 1000 2,000 हम लोग पुशअप करते हैं, रनिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं कि हम लोग स्टेमिना लाने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए करते हैं। तो वो जो हम लोग गुटखा खाएगा, खैनी खाएगा या बीड़ी सादा खाएगा तो हम लोग के स्टेमिना को, हम लोग के स्ट्रेंथ को वो ख़त्म कर देते हैं। जब सभी स्टूडेंट्स और सभी बच्चे लोग को हम यही कहना चाहते हैं, आप नशा पता से दूर रहिए और स्पोर्ट्स में भी जुड़े रहिए। स्पोर्ट्स में जुड़ रहने से आप फिट रहेगा और अपना बदन और लॉन्ग लाइफ रहेगा। आप इतना में मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू नेफा लाइफ, ये हमारा स्पोर्ट्स इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ तक पहुँचा है। एक्चुअली ये NBCA इज़ ऑलवेज कमिटेड टू सर्व द सोसाइटी। हम लोग स्पिरिचुअल में भी हम लोग फोकस करता है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है सोसाइटी का सेवा करने के लिए, लोगों को प्यार फैलाने के लिए। तो इसी तरह वी आर कमिटेड टू सर्व आवर सोसाइटी। हम लोग ये स्पोर्ट्स इवेंट को इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि अभी आज का दुनिया में युवा लोग बहुत ड्रग्स और ओपीएम में एडिक्टेड करके, इन्फ्लुएंस करके रहता है। इसलिए हम लोग क्यों ना स्पोर्ट्स के इवेंट के द्वारा स्पोर्ट में वो लोग को इनकरेज करके हम लोग आगे लेके जाएगा नोक्ते का यूथ को बोल के हम लोग ये इवेंट्स को कंडक्ट किया है। चर्चेस 54 चर्चेस है हमारा नोक्ते बप्टिस्ट चर्चेस एसोसिएशन के अंदर में। तो सारे चर्चेस के लोगों को ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोगों ने इनवाइट करके ये प्रोग्राम वीक लॉन्ग का प्रोग्राम होगा। यहाँ पे हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स को, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हम लोग रखा है। नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द सिंगल गेम, वॉलीबॉल है फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स और टग ऑफ वार है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारे हेल्थ एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ में बच्चे लोग को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। वैसे हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ तो रहता ही है, एट द सेम टाइम हम लोग हमारा नोक्ते समाज को, हमारा ये कम्युनिटी को स्पोर्ट्स वे में भी आगे बढ़ाएगा बोल के हम लोग ये स्पोर्ट्स वीक को हम लोग रख रहे हैं। एंड देन वी नोक्ते एस NBCA कम्युनिटी हम लोग लास्ट टाइम भी ये लैंग्वेज बाइबल ट्रांसलेशन जो नोक्ते लैंग्वेज में हम लोग ट्रांसलेट किया था, ये नोक्ते समाज को अपना प्योर आइडेंटिटी को हमें ये करना है बोल के, लैंग्वेज को सिखा के आगे बढ़ाना है बोल के, वो भी हम लोग ने काम किया था।
तो अभी स्पोर्ट्स का एरिया में था कुछ जो हमें और काम करना है बोल के, इसलिए ये लास्ट ईयर से रिसेंटली हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट के लिए हम लोग शुरू किया है। तो इसमें बहुत अच्छा भी लगा। आज बड़े बड़े लोग जो स्पोर्ट्स कमेटी का एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स भी इवन ईटानगर लेवल से भी आया, और तिरप ओलंपिक का चीफ एडवाइज़र भी आया। इसी तरह हमारा स्पोर्ट्स इवेंट आज से शुरू किया है। हम चाहते हैं प्रभु हमेशा हमारा नोक्ते समाज को आशीर्वाद दे, और नोक्ते समाज भी दूसरा ट्राइब्स का जैसा हर एक फील्ड में आगे बढ़े बोल के प्रभु हमारा नोक्ते कम्युनिटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देने पाए। आमीन। नेफा लाइफ को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज का 2026 का NBCA यूथ मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स वीक में लाइव कवर करने के लिए आया है, इसलिए नेफा लाइफ का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज एम्बिशन के साथ, एक मकसद के साथ हम लोगों ने NBCA यूथ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है स्पोर्ट्स वीक को। 5 डेज़ के लिए होगा। आज हम लोग का ओपनिंग डे है और 27 को हम लोग का फाइनल डे होगा। तो बहुत से चर्चेस से रजिस्टर किया है, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितना भी NBCA में 54 चर्चेस है, तो 54 चर्चेस में से हम लोग का वॉलीबॉल में 16 चर्चेस ने पार्टिसिपेट किया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला करके। और तकवार में हम लोग का 12 टीम से हम लोग को 12 चर्चेस से रजिस्टर्ड किया है। और चेस में 26 पार्टिसिपेंट्स है, और हाई जंप, लॉन्ग जंप मिला के बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स आया है। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज ओपनिंग डे में हम लोग का सर तोकोते की सर भी आया हम लोग का बीच में, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इतना ही दूर ईटानगर से आया है और हमारे लिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किया है, जिसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और हम लोग का नुआ मंकू सर DSO खोंसा आया है, इसलिए उसको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो शुरू हुआ वो बहुत ही अच्छा से, बहुत ही ग्रंथ तरीके से, सर लोग का प्रेजेंस के वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। तो इस लाइव के द्वारा, इस न्यूज़ के द्वारा मैं सर लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यही प्रार्थना है कि परमेश्वर सदा ऐसा ही आशीष देते रहे। और ये गेम्स जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद यही है कि हमारा NBCA का यूथ लोगों को मोटिवेट करना कि स्पोर्ट्स में भी हमें आगे बढ़ना है, केवल परमेश्वर के वचन में नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स भी हम लोगों को आगे बढ़ना है बोल के, इसी बात को इंकरेज करते हुए, इसी बात को समझाते हुए हम लोगों ने ये स्पोर्ट्स वीक ऑर्गेनाइज़ किया। और जितना भी कमेटी मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया। हम लोग का एग्जीक्यूटिव सर से लेकर जितना भी स्टाफ है उन लोगों ने भी साथ दिया। और आज ये कार्यक्रम को शुरू होने में बहुत ही अच्छी तरह का से ग्रहण तरीके से हुआ। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो सबको थैंक यू सो मच नेफा लाइफ और इस न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद।